Hello friends, my name is Yogesh. Welcome to our channel Code Library. So if you're new to our channel, please subscribe and press the bell icon so that when we'll upload our new videos, you will be notified first. So without wasting any time, let's start. So today we are going to solve another problem of 450 sheet is that merge interval. So this is a very good question. We have to just a minute. Yeah. So we are going to solve the merge interval. Here we are going to see two methods, method 1 and method 2. In method 1 we are going to see that the time complexity will be the order of n log n and space complexity will be order of n, and in method 2 the time complexity will be n log n and space complexity will be order of 1. So let's start with the method 1. So what we are going to do in method 1 is that basically what is merge interval. It means that we have been given a array. It means that pair of array 1 comma 2, 2 comma 4, 5 comma 8, 7 comma 10, 11 comma 12. So we can see that when we are going to merge two of the arrays, when they are mergeable, it means that you can see that it is 1 2 और यहाँ देख रहे 2 4 है, मतलब ये दोनों मर्ज किया जा सकता है. तो हम लोग इसे मर्ज करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट इट एज 1 comma 4. ओके, अब हम लोग मतलब ये दोनों को रिप्लेस करके हम लोग 1,4 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये मर्जेबल है. अब देखिए 1,4 और फिर 5, अब तो ये दोनों हट चुका है, ये दोनों यहाँ से दिस हैज बीन डिस्कार्डेड एंड दिस हैज बीन डिस्कार्डेड एंड ये आपका 1,4 इज इन प्लेस्ड हियर. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर 1 4 and 5 8. First of all we are going to short this so that it will be easy to merge. Means what is the logic behind is that we are going to compare the second parameter of this. For example, if you are comparing these two value, okay, so we will comparing second value of this element and first value of this element, and we are going to check if let's take this end 10 as end, means start is first position and end is second position of a pair. So here 10 is end, so we will check the condition that if end is greater than start. If end is greater than start, what does this mean? That it means that these two are going to be merged, and but if this condition doesn't hold, it means that these are not going to be merged. So वही हम लोग देख रहे हैं 1,4 और 5,8. जब ये दोनों को हम लोग कंपेयर किए, पहले हम जानबूझ के शॉर्टेड ऑर्डर में ही ले लिए क्योंकि शॉर्ट करके हम लोग को पहले रखना होगा. अब यहाँ चेक कर रहे 4 और 5, क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं है. इट मीन दैट 1,4 एंड 5,8 कैन नॉट बी मर्ज्ड. तो ये दोनों अलग अलग ही रहेगा. अब नाउ वी आर गोइंग टू चेक 5 8 एंड वी आर गोइंग टू मर्ज. नाउ वी आर गोइंग टू चेक 7 10. 7 10 और 5 8 को चेक कर रहे हैं. तो 8 को चेक कर रहे हैं, क्या 7 से बड़ा है? यस, ये बड़ा है. तो ये दोनों मर्ज किया जा सकता है. अब फर्स्ट पैरामीटर तो पता ही हम लोग का 5 ही होगा मर्ज करते वक्त, बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 7, क्योंकि शॉर्ट कर चुके हैं. तो फर्स्ट पैरामीटर में 5 ही रहेगा. सेकंड पैरामीटर में क्या रहेगा? 8 और 10 में जो बड़ा रहेगा, मैक्स ऑफ 8 and 10, that will be our second parameter. So here we can see that 10 is larger than 8. So now merge of these two will be 5 10. Now 5 10 will be compared with this 11 12. So here we can see that 10 is greater than 11. No, it's false. So this cannot be merged. So finally our answer is this 1,4, 5 10 and 11 12. तो ये हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो चेक करते हैं. फर्स्टली हम लोग का क्या था 1 2 2 4 5 8 7 10 और 11 12. तो हम लोग पहले एक स्टैक लेंगे, मतलब ये ऑर्डर ऑफ एन स्पेस वाला बता रहा हूं मैं. तो पहले स्टैक में हम लोग पहला वाला पेयर को डाल देंगे 1 2. अब 2 4 वाला हम लोग आया सामने, 2 4 आया. अब 2 4 में स्टार्ट कौन है? 2 है, और इसमें भी एंड कौन है? 2 है. तो चेक किए क्या ये इक्वालिटी होगा, यहाँ पर इक्वल भी तो ग्रेटर इक्वल टू स्टार्ट होगा, तब ये मर्ज किया जा सकता है. तो हियर वी कैन सी दैट हियर दिस 2 इज एंड and this 2 is start. We can see that end is greater than equals to start. ये देख रही है हम लोग का ट्रू है कंडीशन, मतलब 2 4 और 1 4 को मर्ज किया जा सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो टॉप ऑफ द स्टैक कौन है? 1 2.
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे और यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू डालेंगे। तो अपडेटेड होके क्या होगा, 1,2 और 2,4 मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पैरामीटर विल बी 1 मीन स्टार्ट विल बी 1 एंड एंड क्या हो जाएगा, ये 2 दिस 2 एंड दिस 4, द लार्जर ऑफ दिस 2 नंबर इज 4, सो वी आर गोइंग टू अपडेट 2 विद 4। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बस ये वाला 2 को अपडेट करके हम लोग यहाँ पर 4 कर देंगे। देखिए हम लोग का पेयर मिल गया हम लोग को, ये लड़ा देते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या कंपेयर होने वाला है, अब हम लोग का आइटरेटर आ गया 5 8 में, यहाँ पर आएगा। अब 5 8 को चेक करेंगे 1 4 से, तो जो 5 8 हम लोग का आ रहा है, यहाँ चेक किए क्या, 8 ये जो 4 है इस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लोग 5 8 को स्टैक में पुश कर देंगे। तो दो ही कंडीशन हो रहा है, अगर दिस एंड वैल्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू फर्स्ट पैरामीटर ऑफ सेकेंड कंपेयरिंग वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मर्ज करके अपडेट कर देंगे। अगर दिस वैल्यू इज लार्जर देन दिस वैल्यू, मतलब क्या हो गया कि इफ दिस कंडीशन डजंट होल्ड, मतलब वो मर्ज नहीं किया जा सकता, तो उसको हम लोग पुश कर देंगे स्टैक में। ठीक है, तो अब जैसे 5 8 हो गया, अब हम लोग 7 10 में आए हैं, तब टॉप ऑफ द स्टैक ये बन चुका है। तो 7 10 में हम लोग आ चुके हैं, तो 7 10 में देख रहे क्या, 7 और 10, हम लोग देख रहे 8 और 7, तो 8 बड़ा है 7 से, मतलब दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर 5 ही रह जाएगा एंड सेकंड पैरामीटर विल बी द मैक्सिमम ऑफ 8 एंड 10, सो वी विल बी अपडेटिंग 8 विथ 10। हम लोग इसको अपडेट कर दिए। अब हम लोग का यहाँ पर 11 12 और 5 10 कंपेयर होगा, तो 10 क्या 11 से बड़ा है, 12 क्या 10 क्या 11 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो 11 12 को पुश कर देंगे। फाइनली हम लोग स्टैक का एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे, वो हम लोग का आंसर होगा। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट अप्रोच। तो इसका हम फटाफट कोड देख लेते हैं, मैं लिख कर रख दिया हूं, आप लोग देख लीजिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, एन ले लिया, सी इन एन के नंबर ऑफ मतलब जो पेयर्स होगा, हम एक वेक्टर ऑफ पेयर बना लेते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टेकन एन इनपुट, दो एलिमेंट लिए और फिर उसको एरे में पुश बैक कर देगा, तो पेयर वाइज चला गया। अब हम लोग क्या शॉर्ट कर दिए, पहले मैंने बोला था शॉर्ट कर दूंगा फर्स्ट पैरामीटर से। अब हम लोग क्या स्टैक ले लिए एक पेयर वाइज, क्योंकि पेयर वाइज करके स्टैक में घुसाना था हमें। अब हम लोग आए स्टैक में, फर्स्ट पैरामीटर को घुसा देंगे, A0 ऑफ फर्स्ट एंड A0 ऑफ सेकंड, ये मैंने बोला था कि फर्स्ट वाले वैल्यू को पहले घुसा देंगे हम लोग। अब हम लोग i=1 से लास्ट तक पूरा हम लोग रन करेंगे और उसको चेक कर देंगे टॉप ऑफ द स्टैक के साथ। दो ही कंडीशन था, मैंने दो कंडीशन आपको दिखा चुका हूं मैं यहाँ पे आपको, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब अगर उसको हम लोग मर्ज कर सकते हैं, तो वी विल बी अपडेटिंग द टॉप ऑफ द स्टैक। इफ this condition is false, then we are going to push the new pair which was not holding this condition true, we are going to push this pair in the stack, तो उसको स्टैक में डाल देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, हम लोग चार पैरामीटर ले रहे हैं, एक स्टार्ट वन, एक एंड वन, स्टार्ट टू, एंड टू। स्टार्ट वन में हम लोग स्टैक वाला ले रहे हैं, तो एस डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, एस डॉट टॉप डॉट सेकेंड, ये स्टार्ट वन और एंड वन में ले लिए। और स्टार्ट टू में ले लिया हम लोग जो एरे का जो मतलब करंट एलिमेंट चल रहा है, ए ऑफ आई डॉट फर्स्ट, और एंड टू में ले लेंगे ए ऑफ आई डॉट सेकेंड। तो हम लोग अब हम लोग को ये चार पैरामीटर वही तो ये हो गया। स्टार्ट जो स्टार्ट वन और एंड वन है वो हो जा रहा है जो स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट होगा, स्टार्ट वन एंड वन जो स्टैक में टॉप में रहेगा, और स्टार्ट टू एंड टू रहेगा जो आपका कंपेयर हो रहा होगा एरे का करंट एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे, इफ एंड वन इज स्मॉलर देन स्टार्ट वन, जो हम बोले थे यहाँ इक्वल टू भी होगा, नहीं सॉरी, ये हम उल्टा कंडीशन चेक किया। इफ एंड वन इज स्मॉलर देन स्टार्ट टू, इसका मतलब क्या हो गया आपका, एंड मींस आपका, यहां दिखाता हूं मैं आपको कंडीशन क्या लिखा हूं मैंने, एंड वन एंड स्टार्ट टू। तो एंड वन क्या हो गया आपका, यही हो गया, ये फोर, जब हम लोग वन फोर कंपेयर कर रहे थे, किसके साथ कंपेयर कर रहे थे हम लोग, ट्रू की फॉल्स कंडीशन लिखे हम लोग, फॉल्स कंडीशन लिखे, तो 1 4 है और जब 5 8 था, जब ये हम लोग कंपेयर कर रहे थे, हम लोग ये क्या है हम लोग का 4, क्या है हम लोग का 4 है, हम लोग का एंड वन है 4, 5 क्या है स्टार्ट टू है, तो चेक करें क्या एंड वन इज लेस देन स्टार्ट टू, या इट्स ट्रू, ये हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों को हम लोग मर्ज नहीं कर सकते, तो इसको डायरेक्टली पुश कर देंगे स्टैक में, इससे हमने इसे स्टैक में पुश कर दिया। एल्स मतलब हम लोग को मर्ज करना है, तो पहले हम लोग स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट्स को पॉप कर दिए, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट दिस। हाउ,
हम लोग बोले थे कि स्टार्ट विल बी द सेम एज ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, दैट इज स्टार्ट वन ही रहेगा, बट वी आर गोइंग टू अपडेट एंड वन. हाउ? वी आर गोइंग टू अपडेट एंड वन बाय द मैक्सिमम ऑफ एंड वन कॉमा एंड टू, मीन्स द मैक्सिमम ऑफ इफ कौन कौन सा होने वाला. हाँ, यहाँ पर जो हम लोग ये दोनों को 5 8 और 7 8 को हम लोग अपडेट कर रहे थे ना, तो 8 और ये 10 ये दोनों का हम लोग को मैक्स लेना था. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन मैक्स ऑफ एंड वन एंड एंड टू, एंड नाउ वी हैव पुश द न्यू अपडेटेड एलिमेंट टू द स्टैक. अब हम लोग क्या करेंगे, बस वाइल लूप चला के हम लोग स्टैक को बस प्रिंट कर दिए. तो हम लोग अगर कोड को रन किए, हम ले लिया था मैंने 5 और यहाँ पर 5 इनपुट्स ले लिए थे, तो देख चुके सकते हम लोग ये आंसर आ रहा है. मतलब 1 2 और जो 2 4 था ये मर्ज हो गया 1 4 हो गया, ये दोनों मर्ज 5 8 7 8 मर्ज हो गया 5 10 हो गया, और 11 12 मर्ज ही नहीं हुआ, तो वो रह गया. तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया हम लोग का, n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n. So here we are going to discuss the second method whose time complexity is same n log n, but the space complexity will be order of 1. तो हम लोग मेथड वन में देखिए ऑर्डर ऑफ एन में हम लोग का हो रहा था स्टैक यूज करके, एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ऑर्डर ऑफ 1. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक टू पैरामीटर, वन इज इंडेक्स एंड अदर जो फॉर लूप चलाते हैं आई आइटरेटर लेकर वो. तो इंडेक्स क्या हो रहा है ना हम लोग का, मतलब फाइनली हम लोग का आंसर कहाँ स्टोर रहेगा, जीरो इंडेक्स से लेकर आईडीएक्स जो पोजीशन रहेगा वहां तक हम लोग का आंसर स्टोर हो जाएगा. ये सेम एरे में, ये सेम एरे में ही स्टोर हो जाएगा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स हम लोग का दो ही कंडीशन रहेगा. इंडेक्स जैसे ये अभी यहाँ पॉइंट कर रहे हैं इंडेक्स, ठीक है, और हम लोग आई को आइटरेट करेंगे स्टार्ट फर्स्ट पोजीशन से लेकर लास्ट तक आइटरेट करेंगे, और बस चेक करते रहेंगे कि इफ दिस एंड इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू दिस फर्स्ट. तो अगर ये ट्रू होता है तो मतलब क्या हो गया, दिस टू आर गोइंग टू बी मर्ज्ड. तो मर्ज करने का क्या बोला था मैंने कि इस फर्स्ट पैरामीटर को ही अपडेट कर देंगे. तो ये जो फर्स्ट इसका है ये तो वही रहने वाला है, बिकॉज दिस विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन दिस, बट दिस पोजीशन कैन बी ग्रेटर, दिस पोजीशन कैन बी दिस और दिस. सो हम लोग मैक्स ऑफ 2 एंड 4 को यहाँ अपडेट करेंगे, और अगर फॉल्स होगा तो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है. तो फिलहाल अभी इसको आइटरेट करके चेक करते क्या हो रहा है. इंडेक्स अभी इस पोजीशन में है, आई अभी इस पोजीशन में है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं 2 is greater than equals to 2, yeah it's true, so it means that these two are going to be merged. So हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ this 2 को अपडेट कर देंगे. और मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पैरामीटर तो 1 ही रहेगा, सेकंड पैरामीटर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस. तो 2,4 का मैक्स कौन है, 4 है, तो हम लोग ये रहने दिए. और इंडेक्स को यहाँ इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, वहीं रहेगा, सिर्फ आई इंक्रीमेंट होगा. आई को यहाँ अपडेट कर दिए. अब हम लोग का क्या हो रहा है ना, जो ये 2,4 यहाँ पर जो है ये हम लोग का ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इसको मर्ज कर चुके हैं पिछले वाले के साथ. तो आई अपडेट किए. नाउ वी आर गोइंग टू चेक विथ इंडेक्स एंड आई पोजीशंस इफ 4 is greater than equals to 5. No, it's false. It means that 1 4 and 5,8 are not going to be merged. तो जो merge नहीं हो सकता तो हम लोग क्या करेंगे, we are going to increment index. तो index will come here. Okay. Index is in this position, and now we are going to update index position with ith position. Means 2,4 को हम लोग हटा के 5,8 यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि 2,4 कोई काम ही नहीं है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर 5,8 लगा देंगे. क्यों, मैं बताता हूँ आपको रीजन. क्योंकि वी कैन सी दैट फर्स्ट में क्या था, इंडेक्स 1,4 था और ये आई अभी यहाँ आ चुका था. अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि 1,4 5,8 मर्ज नहीं किया जा सकता. इफ 1,4 इज नॉट गोइंग टू बी मर्ज विद 5,8, देन दिस विल नॉट गोइंग टू मर्ज विद द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी शॉर्टेड दिस एरे. तो 5,8 से अगर मर्ज नहीं हो रहा है तो आगे के संग तो मर्ज नहीं होने वाला है. तो 1,4 के संग किसी को कंपेयर ही नहीं करना है. नेक्स्ट आवर कंपेयरिंग एलिमेंट इज 5,8. अब 5,8 को रिमेनिंग एलिमेंट के संग हम लोग कंपेयर करेंगे. दैट्स व्हाई वी हैव रिप्लेस्ड दिस पोजीशन एलिमेंट विद 5,8 एंड वी हैव इंक्रीमेंटेड द इंडेक्स आल्सो. ठीक है, तो देख सकते हो इंडेक्स तक हम लोग का आंसर सही है पूरा. ठीक है, अब हम लोग आई को यहाँ अपडेट किया. ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं 5 8 और 7 10. वी कैन सी दैट 8 is greater than equals to 7. Yeah, it's true. It means that we are going to merge 5 8 and 7 10. तो merge करने के लिए क्या मैंने बोला था, डायरेक्टली 5 will be the 5, वो सेम रहेगा, and this position will be maximum of 8 and 10. तो अभी मैक्सिमम कौन है, 10 हमें तो दिख ही रहा है. डायरेक्टली हम यहाँ पर 10 कर देंगे और डायरेक्टली अपना i को यहाँ ले आएंगे. तो अपना इधर आ गया, ये अब i नहीं रहने वाला ये सब. ठीक है, तो i अब हमारा इधर आ चुका है.
नाउ वी आर गोइंग टू चेक 5, 10 एंड 11, 12 कम। तो 10 देखते क्या 10 is 10 greater than equals to 11? No, it's false. It means that these two are not going to be merged. तो मैंने क्या बोला था, अगर इसको हम लोग मर्ज नहीं कर सकते तो इंडेक्स को बढ़ाएंगे, जो पोजीशन में जो वैल्यू रहेगा उसको और ith पोजीशन को रिप्लेस कर मतलब अपडेट कर देंगे डायरेक्टली। इफ दे आर गोइंग टू बी मर्ज तो idx वाले जो पोजीशन है वहीं पर बस अपडेट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है हमें। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 5,10 और 11,12 आर नॉट गोइंग टू बी मर्ज, डायरेक्टली इंडेक्स को अपडेट किए। तो अब इंडेक्स इधर आ चुका है, ये वाला हमारा इंडेक्स नहीं रहा। अब हम 11, 12 को यहाँ अपडेट कर देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 11, 12। अब हमारा लूप तो खत्म हो गया। मैंने क्या कहा था, लास्ट में आंसर अब हमारा 0th पोजीशन से idx पोजीशन था आंसर आएगा था, और आंसर इज दिस। यू कैन सी दैट आवर आंसर इज 1, 4, 5, 10, 11, 12। चेक भी कर सकते हैं 1, 4, 5, 10 एंड 11, 12। तो दिस वाज आवर अप्रोच ऑफ ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, दैट्स वाई। कोड आप लोग खुद कर लीजिएगा, ट्राई करिए आप लोग, मैं कोड फिर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अप्रोच, मेन तो अप्रोच था, अप्रोच आपको समझ आ गया होगा। अब इसे आप ट्राई करिए, नहीं समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि क्या दिक्कत हो रहा है। अंटिल देन वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय।